Hello, good morning, students. Today we are going to learn the transformation of negative into affirmative. In the last chapter, we studied that how to convert the following sentences from affirmative into negative. Now, in the same way as we did it last time, you have to remember it very properly. When you are going to change the sentence from negative into affirmative, you need to remember one thing very properly. What is it? You should not use any kind of a negative word in the affirmative sentence. affirmative sentence negative से बनाते वक्त सबसे पहला नियम, रिमूव द नेगेटिव वर्ड. नेगेटिव वर्ड को निकाल दीजिए, जैसे नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर या नीदर, nobody, no one, etc. Second, if you remove that word only, the meaning may change, meaning बदल जाएगा. तो सिर्फ नेगेटिव वर्ड नहीं निकालना है. Along with removing the negative word, find out that is there any word in the sentence which is a noun or adjective or any other form which can be changed into opposite word. विरुद्धार्थी शब्द डालना है. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर नॉट वेरी काइंड. तुम ज्यादा काइंड नहीं हो, इतने अच्छे नहीं हो, है ना. नहीं ये वर्ड हटाना है मुझे. तो तुम कैसे हो, हाउ आर यू देन? यू आर unkind. So in the given sentence, you can see it in the first sentence number 1. उस not को हटाने के बाद तो ये जो kind word है, इसका मैं अगर opposite डाल देता हूं तो मीनिंग वैसा का वैसा रहेगा. तो ये मेंटेन करते वक्त आपको ध्यान रखना है, when you change negative into affirmative, remove negative word and use appropriate opposite words. opposite word यूज करना है, विरुद्धार्थी शब्द यूज करना है. So I have given first example, you are not very kind. The answer will be affirmative. क्या बन जाता है इसका? You are unkind. She was not present. वो present नहीं थी, तो क्या थी फिर? Absent थी, है ना. So you are writing the answer, she was absent. So understand this point very clearly, all of you. In the same way, if you see it in the third sentence, he is never late for meetings. कोई XYZ व्यक्ति है, he, वो कभी मीटिंग्स में लेट नहीं होता, मतलब टाइम पर आता होगा मीटिंग को, है ना. तो ये मीनिंग होता है. सो आंसर इज ही इज ऑलवेज इन टाइम. यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ आपके सामने. सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज मैटर्स. इन टाइम फॉर मीटिंग, ही इज ऑलवेज इन टाइम फॉर मीटिंग. क्लियर? सो आप एक वर्ड भी मिस करते हो उसमें से या गलती कर बैठते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है. सो टेक केयर दैट यू पुट करेक्ट वर्ड्स इन द सेंटेंस. देन फोर्थ सेंटेंस, शी इज नॉट ओबीडियंट. वो ओबीडियंट नहीं है, तो फिर कैसी है? डिसओबीडियंट है. तो कुछ वर्ड्स के अगर आपको ऑपोजिट एग्जैक्ट पता नहीं हुए ना, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है. सो यू लर्न द वर्ड्स प्रॉपरली. आपको ये लर्न करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नहीं आएंगे. यू हैव टू लर्न कि कौन सा वर्ड का कौन सा ऑपोजिट होना चाहिए, तो ही आप ये सेंटेंसेस चेंज कर पाते हैं, वरना प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. देन इन द सेंटेंस नंबर 5, दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. तो कैसा प्रॉब्लम है? छोटा प्रॉब्लम होगा. सो दिस इज अ स्मॉल प्रॉब्लम. So all of you please note down all these sentences first in your notebook. पीछे भी मैंने affirmative negative, फिर उसके पहले figures of speech पढ़ाए थे, फिर उसके एकदम स्टार्टिंग में अप्रैल में आपको फिर भी मैं भेज दूंगा. Before that I have already sent the voices, degrees of comparison, correct? तो उनके भी वीडियोस यूट्यूब पर भेजे थे. तो वो सब प्लीज आपकी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है आपको compulsorily. So don't ask funny questions to anybody कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Okay, note down करते रहो, so you will be having a good practice of it.
So all of you, please pay attention properly. Write down all these 5 sentences or take a screenshot, and let us now continue in some more examples. Correct? Now let us check in the next examples. Yes, this slide is already completed. Then next one is sorry for that one. In the next, negative into affirmative. There are some sentences, just check them out very properly. She was not absent. वो absent नहीं थी. Then she was present. और अगर उल्टा किया मैंने, she was not present, तो फिर she was absent. ये दोनों सेंटेंस में ये ऊपर नीचे हो सकता है, absent का present या present का absent. Then in second sentence देखो ध्यान से, all of you just check it out. We must not make insensitive remarks. Insensitive जिनमें कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, ऐसे रिमार्क्स हमें नहीं करने चाहिए. तो क्या करना चाहिए हमें? इनको ऐसा करने से रोकना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए या रिफ्रेन करना चाहिए. सो सी द आंसर. व्हाट वी मस्ट डू देन? वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम या अवॉइड, दोनों में से एक यूज कर सकते हो. रिफ्रेन फ्रॉम को पूरा हटा दीजिए एंड राइट अवॉइड वर्ड. ओके, अवॉइड फ्रॉम मेकिंग insensitive remarks. We must refrain from making insensitive remarks. अब कुछ जन ऐसा भी बोल सकते हैं शायद, we must not make insensitive remarks. तो हमें कैसे remarks करनी चाहिए वो भी हम लिख सकते हैं. Okay, so just go through it very properly. We can make the changes. Here I am going to make one more sentence. Just find out, can we change it or not? Okay, one more answer I am writing here. We must, I just put it in the whole capital only. We must make, okay, what kind of remarks? Sensitive remarks. दोनों में से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हो. ओके, तो दोनों के बीच में जो फर्क है बस इतना ही है, उसमें हम रिफ्रेन फ्रॉम डाल रहे हैं और इसमें हम यस मेक सेंसिटिव ऑपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं. सो टेक द clarity of this type of sentences very clearly and understand it in a proper channel. One more thing before moving towards the next point here. I would like to make it very clear to all of you. Okay, that is a little bit further so that you can get a very clear idea regarding all the type of sentences and put them in a proper way. Okay, now try to put a proper gap also here. I'm just making some changes to make you very clear so that by that time you can write them properly. And please think very properly that how to write the correct answers. Okay, you can see it all of you very clearly. Okay, now I hope so you will get it very clear. Then in the third sentence, he doesn't have many friends. उसके बाद बहुत सारे दोस्त नहीं है या उसके बहुत सारे दोस्त नहीं है, तो आंसर he has very, इसमें very भी डाल सकते थे आप, assertion डाल सकते हैं. He has very few friends. Okay, बहुत कम दोस्त है, मतलब बहुत सारे ज्यादा दोस्त नहीं है. Then fourth number, please note them down one by one.
आई एम नॉट अलाउड टू एंटर हिज हाउस, मुझे उसके घर में जाने से मना किया है। अलाउड नहीं किया है, मना किया है, एक ही हुआ। तो मना किया है के लिए वर्ड क्या है? फॉरबिडन। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो प्लीज, आई एम फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग हिज हाउस। एंटर का क्या बन गया? एंटरिंग बन जाएगा। कुछ छोटे छोटे चेंजेस है। फॉरबिडन का मतलब अलाउ न करना, मना करना, उसको बोलते हैं। सो राइट डाउन द सेंटेंस, आई एम नॉट अलाउड टू एंटर हिज हाउस मीन्स आई एम फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग हिज हाउस। आमतौर पे एक चीज का ख्याल रखना, हम जब भी फॉरबिडन या रिफ्रेन या अवॉइड इनका उपयोग करते हैं तो उसके बाद फ्रॉम प्लस आईएनजी आता है। सेंटेंस पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि कौन से एक्शन में हमें फ्रॉम डालकर आईएनजी करना चाहिए। ओके, कुछ सेंटेंसेस डायरेक्टली बिना फ्रॉम के भी बनते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। क्लियर? फिफ्थ वन, मनस्वी sorry for this one, Manasvi did not get bad marks। जैसे मैंने डिड डाला, आपने देखा मैंने क्या चेंज किया? जानबूझ के किया मैंने ये, ताकि आपको ध्यान में आ सके। मनस्वी डिड नॉट गेट बैड मार्क्स, मनस्वी को बुरे मार्क्स नहीं आए। तो कैसे मार्क्स आए? अच्छे मार्क्स आए होंगे ना। सो मनस्वी गॉट, अब इसमें गॉट क्यों किया? क्योंकि पास्ट टेंस था, डिड। तो जब भी क्वेश्चन में डिड जैसा कोई वर्ड होगा जो पास्ट टेंस में, यू हैव टू चेंज इट इनटू पास्ट टेंस फॉर्म, जिस वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म यूज करना चाहिए आपको। सो प्लीज नोट डाउन ऑल दी सेंटेंसेस नाउ, ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा जल्दी लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि मैं अगली एक स्लाइड बता सकूं आपको। ठीक है? नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लाइड हियर। Some more examples are there, beautiful examples are there, just study them now. Negative into affirmative again, Peter does not run, इन पर खास ध्यान रखना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंसेस आते हैं ये, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सेंटेंसेस है। ओके, पीटर डज नॉट रन एज फास्ट एज जेम्स, पीटर किस तरह से नहीं भाग सकता है? यस, जेम्स की तरह उतना फास्ट नहीं भाग सकता है जितना पीटर भागता है। ओके, या फिर उतना जितना फास्ट जेम्स भागता है उतना पीटर नहीं भाग पाता है। तो सवाल ये उठता है, तो जेम्स कैसे भागता है फिर? पीटर डज नॉट रन एज फास्ट एज जेम्स। ओके, एक्चुअली इसमें सो फास्ट आना चाहिए, वो भी करेक्शन कर लीजिए आप। यहाँ पर कुछ जगह पर जानबूझ के जो सेंटेंसेस में चेंजेस आपके सामने कर रहा हूं मैं, ताकि आपको छोटी छोटी बातें ध्यान में आ सके। ओके, डज नॉट रन सो फास्ट एज जेम्स। सो क्यों आता है सर? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अगर आपने पहले पढ़े हैं, ध्यान से वो स्लाइड्स देखी होंगी, या चैनल देख लेना वापस, मैं भेज दूंगा वापस लगे। पीटर डज नॉट रन सो फास्ट एज जेम्स, पीटर उतना फास्ट नहीं भाग पाता है जितना जेम्स भागता है। तो जेम्स कैसे भागता है? जेम्स रन्स फास्टर, फास्ट का फास्टर, एज या सो एज निकल जाता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ऐसा नियम होता है। देन डालना होता है, देन पीटर। अगेन आई रिपीट, जेम्स रन्स फास्टर देन पीटर। सर इसमें रन नहीं होना चाहिए? नहीं, जेम्स कोई प्लूरल नाउन नहीं है, एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति के आगे हम हमेशा एस ई एस लगाते हैं अगर वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो। देन नेक्स्ट इज, द वाटर इज सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इसके नियम आपको ध्यान में रखने हैं। सो दैट का सेंटेंस टू में बदलता है, सो दैट का सेंटेंस TOO और TO2 में बदलता है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। द पर्सन इज सो टैलेंटेड दैट नो वन कैन कम्पीट हिम। वो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है, या जो XYZ व्यक्ति है, द पर्सन इज सो टैलेंटेड दैट नो वन कैन कम्पीट हिम, कि वो इतना टैलेंटेड है कि उसे कोई दूसरा कम्पीट नहीं कर सकता। तो उसको टू में लेकर जाइए आप। द पर्सन इज
टू टैलेंटेड टू compete, टू compete, सीधा टू compete पे आई है। इसमें फॉर डाला है सर, क्योंकि इसमें आई के बारे में बात की गई है, दैट आई, ओके, उस आई को मैं फॉर मी में कन्वर्ट करना जरूरी है। द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक, पानी इतना ठंडा है मेरे लिए, दैट आई कैनॉट ड्रिंक लिखा है ना, तो फॉर मी लिखना होता है आपको। सो बी वेरी केयरफुल। तो इसमें ऐसा मत करना, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक फॉर मी, पानी आपको नहीं पीने वाला है, पानी को आप पीने वाले हैं, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल। द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक, तो यह सो दैट का सेंटेंस टू में कन्वर्ट करने का जो तरीका है मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा है। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन है, जब हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में समझेंगे उस वक्त मैं आपको ये पूरी डिटेल्स बता दूंगा। देन थर्ड वन, आयरन इज नॉट ओके अ हेवी मेटल, आयरन जो है ये कोई इतना हेवी मेटल नहीं है, ओके, आयरन इज नॉट अ हेवी मेटल, देन हाउ इज आयरन? तो आपने अगर ऐसा आंसर लिख दिया ना सीधा, आयरन इज अ हेवी मेटल, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपके सामने मैंने कुछ गलतियां जानबूझ के जो हम करते हैं वो मैंने डाल के रखी हुई है। आयरन इज नॉट अ हेवी मेटल, तो यहाँ पर हेवी का ऑपोजिट क्या आएगा? यस, मान लो आयरन भले ही मैंने लिखा है, हमें उससे मतलब नहीं, आयरन इज नॉट अ हेवी मेटल, आयरन कोई हेवी मेटल नहीं है, तो आयरन इज अ लाइट मेटल, हल्का होता है, ऐसा लिखना है हमको। मैं आयरन की जगह पे पेपर डाल देता हूँ लगे तो, ताकि आपका कंफ्यूजन निकल जाएगा। पेपर is not a heavy metal or heavy material, ओके, वो लिख दीजिए आप, तो ज्यादा बेहतर होगा। देन आंसर में भी ये चेंजेस करने हैं, आयन की जगह पे आपको यस पेपर ही लिखना है। पेपर इज अ लाइट मटेरियल। नाउ इट इज क्लियर। सर आयन क्यों नहीं रखा आपने? क्योंकि आयन एक्चुअली में देखा जाए तो हेवी मेटल होता है। आयन इज अ हेवी मेटल होता है वो, तो वो लाइट मेटल नहीं होता है, तो हम नेगेटिव बना बैठेंगे उसका। तो बी वेरी केयरफुल हियर, ओके। देन इन द फोर्थ सेंटेंस, all of you note down the sentence, the medicine is not expensive, मेडिसिन इतना महंगा नहीं है, तो कैसा है? सस्ता होगा ना। सो आंसर इज द मेडिसिन इज चीप और चीपर, चीप या चीपर यहां पर आप यस लिख सकते हो, ऑब्लिक करके लिख सकते हो। आपके सामने मैं जो चेंजेस करो उनको ध्यान में रखकर आप यस प्लीज नोट डाउन करते रहना उनको, and make the changes according to the yes sentences which are transformed. And now last one, no one is found, no one is found the play uninteresting, अब इसमें is निकाल देता हूँ, क्यों गलत हो जाएगा सेंटेंस। नो वन फाउंड द प्ले अनइंटरेस्टिंग, ओके, कोई ऐसा नहीं था कि जिसे जो खेल वो खेल रहे थे अनइंटरेस्टिंग लगा, ऐसा कोई नहीं था, मतलब सबको वो कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लगा। सो बी वेरी केयरफुल। लेकिन नो वन का क्या कर दूंगा मैं चेंज, एवरीवन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आंसर इज एवरीवन फाउंड द प्ले इंटरेस्टिंग, हर एक को वो प्ले काफी इंटरेस्टिंग लगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ना बिफोर आई मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू give some examples for practice to all of you, so please take them into consideration, okay। मैं कोई स्लाइड में आपको कुछ सेंटेंसेस दे देता हूँ, न्यू स्लाइड बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर उस न्यू स्लाइड में मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ, तो उनको आप प्लीज करके एक एक करके लिखते रहना, ठीक है। आई जस्ट पुट डाउन वन बाय वन प्रॉपर्ली। मेक नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, ट्रांसफॉर्म
negative into, sorry, negative into affirmative. Okay, now let us change one by one sentence. I'll just type them out. आप उसको note down करते रहना please. Okay. Now I'll just put down the screen also. Screen में आपके सामने रखने जा रहा हूँ. Now you can see it very properly. Okay. Orally मैं sentence वहाँ पर type करता हूँ. आप एक एक लिखना और उनके जवाब घर पे प्रैक्टिस करना है सबको कंपल्सरी. सब लोग sentences पर ध्यान रखें. All of you just pay attention on some of the sentences. मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ लाइव के जैसा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. Is it clear to all of you? अगर दिख नहीं रहा है मैं कलर चेंज करके तो लगे तो okay. I'll just change the color. Now you can see it very properly. Okay. Now first sentence. Sentence number 1. Okay. White color में चलेगा. I'm just changing the font also. He, sorry. He is not at all capable to fight the battle. वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए टू फाइट द बैटल. ओके. जो भी व्यक्ति है वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है क्या करने के लिए टू फाइट द बैटल. तो कैसा है वो आपको वो लिखना है. देन ही इज इनकेपेबल. तो आंसर लिखिए सब लोग प्लीज. ही इज इनकेपेबल टू फाइट द बैटल. क्लियर. देन सी द सेकंड सेंटेंस. They are never inactive.
दे आर नेवर इनएक्टिव, वो कभी इनएक्टिव नहीं होते। तो वो कैसे होते हैं? दे आर नेवर इनएक्टिव, तो कैसे होते हैं? दे आर ऑलवेज एक्टिव। ओके, नाउ थर्ड वन, इन द थर्ड सेंटेंस, make the practices properly, all of you. My father is so strict. My father is so strict that we cannot, we can't argue with him. सब लोग ध्यान रखना, my father is so strict that we can't argue. तो आंसर, my father is too strict. My father is too strict for us to argue. My father is too strict for us. We का us बन जाएगा, for us to argue. Let us move in the next sentence. Okay, fourth one. No sooner did I enter the hall than they all welcomed me. Okay, no sooner, change करना है. No sooner did I enter the hall than they all welcomed me. Answer, as soon as I entered, ed लगाना है. As soon as I entered the hall, comma, they all welcomed me. They all welcomed me. And the last sentence for the day, practice करना है. Okay, I can't avoid eating junk food. सही बात है ना? I can't avoid eating junk food. मैं जंक फूड खाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता. थिंक हाउ टू राइट द आंसर. मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता. तो आंसर, आई ऑलवेज ईट जंक फूड. आई ऑलवेज ईट junk food. Very clear to all of you? Here it is the end of your all the affirmative and negative into affirmative. Still, if any doubts are there, please try to concern me or try to be very free to ask the questions regarding the problems. Thank you and have a nice day. In the next session, we will study some other types of sentences and continue this grammar section.